बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। स्टडी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में आप कैसे बैलेंस करेंगे? Good morning everyone present over here. My name is Tripti Tiwari and my topic is balance between studies and extracurricular activities. Friends, everything in life is very important. Either it is studies or the extracurricular activities. Studies makes us a better person and also it helps us for a better profession. But extracurricular activities also help us in many ways. Like it generates a feeling of recreation, plus it keeps us healthy. So both the things is very important in human life. But here the topic is how can we balance between both things, either studies or curricular activities. If we ask someone, it is very difficult for us to make a balance between both the things. Either we can manage study or either we can play sports or do other things. No, it is wrong. Balance between both is very necessary and one should balance it for its healthy life. We can segregate the time because time is limited. 24 hours are for everyone. So we should balance time. We should give proper time to study and proper time for the extracurricular activities. We should balance both in order to maintain a good life and healthy lifestyle also. Thank you. Next from yellow or green. How many members are remaining for the extended? 3 members are there. 3. We are not in the teaching room. Roles of technology in healthcare system. Roles of technology in healthcare system. A marvelous good morning to all the dignitaries present here. My name is Dipali Chanderia and today's topic for the day is roles of technology in the healthcare system. Now when we talk about technology, technology is not only important in healthcare system, but technology has been increasing day by day in all of the system which is used here. When we talk about in healthcare system, technology plays a major role, it reduces the time for the work which nurses have been doing while writing. From the starting ये कि लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. हम सब जानते हैं कि हम वीडियोस तक लिखते हैं बैठ के एंड इट बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है. टेक्नोलॉजी ने वो उस टाइम को रिड्यूस कर दिया और हम उस टाइम को किसी और इम्पोर्टेंट वर्क में यूज कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो बीन source for information not only to the healthcare system but all around other. It has been a tremendous tool for the people who are using it, for our generation and for the coming generation. Technology is also a tool which has been a source for a great information for everyone around here. Thank you. There is 2 participants from yellow group. Okay, from purple. Empowering nursing profession. How we empower the nursing profession? So, your time starts now. Good morning, each and everyone present here. Today, I, Pragya Vaishnav, representing the Yellow House, is going to represent the topic which is nursing empowerment. Nursing empowerment बहुत ही जरूरी है हमारे देश में. अदर कंट्रीज में क्या होता है कि लोग नर्सिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट इन आवर कंट्री ऐसा नहीं है. इन आवर कंट्री some days nursing is very lower
super great profession, but it's not. Nursing is care. When it comes in family, mother and father. When you compare between mother and father, हम लोग अपनी मम्मी के पास ज्यादा जाते हैं. हम लोग वो इतना केयर प्रोवाइड करती है, हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि पापा हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ज्यादातर. सो ऐसा है कि मम्मी है नर्सिंग प्रोफेशन एंड द अदर टर्म दैट इज फादर, वो है ये बड़े बड़े प्रोफेशन. जैसे सब लोग बोलते हैं बहुत बड़े प्रोफेशन, डॉक्टर्स. सब लोग डॉक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, नर्सिंग को कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता, बट वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये इसकी शुरुआत हमें नर्सेस खुद को करनी चाहिए. हम जो नर्सेस हैं, ईच एंड एवरीवन शुड सपोर्ट द आवर प्रोफेशन आवरसेल्व्स, क्योंकि हम लोग धीरे से सपोर्ट करेंगे तब पूरा देश साथ में हमारे जुटेगा. हमको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए उस चीज के प्रति कि हम एक नर्स है. हम खुद से इतनी केयर प्रोवाइड करते हैं, अपनी ड्यूटी इतने अच्छे से करते हैं कि कोई हमें उंगली भी नहीं उठा सकता. और हम लोगों को हर चीज खुद से शुरुआत करनी चाहिए. तो हम सबको आज से ही ये ठान लेना चाहिए कि हमको वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमको नॉलेज रहना चाहिए कि हम एक हर किसी से कॉम्पिटिशन कर सकें. थैंक यू वेरी मच. You take 2 more seconds, na? Extra. 2 seconds. Last is red. 2 seconds. Topic is effective time management. How your time you manage effectively? Good morning, my dear teachers. I shall assume my topic is effective time management. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो समय है वो आधुनिक समय है और बहुत सारे हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं जो कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है. उसके लिए हमें इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हम पहले से ही गोल प्लान कर लेते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं कि हमें आज का पूरा वर्क कैसे करना है, जिससे अगर टाइम में थोड़ा बहुत पीछे भी होते हैं तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं. एग्जाम के टाइम में भी हम देखते हैं कि पहले से हम सेट कर लेते हैं कि आज हमें इतना टॉपिक कवर करना है. वैसे ही हमें अपनी डेली लाइफ में भी सभी एक्टिविटीज जैसे कि करिकुलर एक्टिविटीज, स्टडी और हेल्थ और अदर डोमेस्टिक वर्क्स के लिए भी हमें सारे टाइम को मैनेज करके रखना चाहिए. और टाइम तो बहुत ही अनमोल है, जैसा कि पुराने समय में भी कहा गया है कि समय बड़ा अनमोल है. तो अगर एक बार ये हमारा टाइम गया तो रिपीटेड नहीं आता है. तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क तो होना चाहिए, पर टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हम पीछे हो जाएंगे. इसलिए हमारा जो जीवन है वो एक रेस की तरह चलता है और उसमें हमारा टाइम अगर मैनेज नहीं होगा तो हम पीछे हो जाएंगे. उसके लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. सो हम मॉर्निंग से भी वर्क करना अगर स्टार्ट करते हैं तो भी हम कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं. इसलिए हमें मॉर्निंग में उठना, मॉर्निंग का जो समय होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है स्टडी मटेरियल्स के लिए भी, एक्सरसाइज एंड करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी. सो मॉर्निंग का टाइम इज बेस्ट होता है. सो उसको ज्यादातर थैंक यू. Now from yellow group, Priyanka. Impact of social media on relationship. जितने भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो आपके दोस्तों के होते हैं, सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन रिश्तों. Your time start now. Good morning, my respected principal ma'am and all my honorable teachers and all students. आज मेरा टॉपिक है कि सोशल मीडिया का रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है. तो जो सोशल मीडिया है, मुझे ऐसा लगता है उसका रिश्तों पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है. आज जब पहले हम समझ लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट. तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि जैसे कोई भी रिलेशनशिप में कुछ
दूर रहते हैं, कुछ लोग दूर रह रहे हैं तो उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकता है हमारा। हम दूर रहते हुए भी उनसे रोज बातचीत कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट में रह सकते हैं, फीलिंग शेयर कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि जो बातें हम फेस टू फेस नहीं कह पाते हैं वो हम मैसेज के थ्रू कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें फेस टू फेस कहने में हेजिटेशन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैसेज के थ्रू हम अपनी बातें अच्छे से शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है वो मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से है, क्योंकि आजकल हम हैबिचुअल हो गए हैं, सोशल मीडिया के हैबिचुअल हो गए हैं। हमारा उठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, हम खुद मतलब इतने उसके आदी हो चुके हैं जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हम मोबाइल के आदी हो चुके हैं, चार फैमिली मेंबर घर पे बैठे हुए हैं साथ में, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी अपने फोन पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल से तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन माता पिता से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि माता पिता हमें जो उदाहरण दिखा सकते हैं वो सोशल मीडिया नहीं दिखा सकता है। सोशल मीडिया में फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होता है, हमें नहीं पता कि कभी कभी किससे बात कर रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे ऐसे अननोन लोगों से भी चैट करते हैं जिनसे मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हमें किस चीज पे क्या डायरेक्शन देंगे। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। जो टाइम मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो सोशल मीडिया की ही वजह से हो रहा है। तो हमें ये चाहिए Elimination this way. Elimination is first. Last is you are not involved in the extemporary. You are not